بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ یوٹیوب کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ، آپ کو پتا ہے کہ ماہ محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی 10 تاریخ کو بچہ بچہ جانتا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ سرکار سید الشہداء شاہ سوار کربلا نواب کربلا سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے آپ نے اپنا وطن مدینہ منورہ چھوڑا، مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور سرزمین کربلا پہ پہنچے۔ اس لیے اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے دشمنان نے اسلام کا مقابلہ کیا اور اسلام کو زندہ و دوبالا کیا۔ بہرحال اس دن کو کیسے منانا چاہیے آج آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا، کیونکہ وجہ یہ ہے 10ویں محرم الحرام کا دن آ جاتا ہے، لیکن ہمارے بھائیوں کو پتہ ہوتا نہیں اس دن کرنا کیا چاہیے۔ جیسے دن دوسرے گزار دیتے ہیں ویسے ہی یہ بھی گزار دیتے ہیں، تو یہ کوئی بات تو نہ ہوئی۔ اس دن کو عام دنوں جیسا مت سمجھو۔ اس دن کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کچھ لوگ ہیں سنی ہو کے مرشیوں کے مجلس میں چلے جاتے ہیں، اہل سنت و جماعت سے تعلق قائم کر کے جاتے شیعوں کے مجلسوں میں، تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی۔ اس دن کو کیا کرنا چاہیے بہتر سے بہتر، آج میں وہ بیان کروں گا۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ڈولی ٹھوٹیاں بانٹی جاتی تھی، اس کے اندر کھیر ہوا کرتی تھی، فرنی ہوا کرتی تھی، تو وہ بانٹتے تھے، اس پر ختم دلاتے تھے اور بچوں کو بلا کے گھروں میں وہ بانٹی جاتی تھی۔ جن کا تھوڑا بہت تعلق ہے دین کے ساتھ، زیادہ نہیں تھوڑا بہت، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ڈولی ٹھوٹیاں بانٹنے والا مہینہ ہے۔ کچھ لوگ گلیوں بازاروں میں دودھ کی سبیل لگاتے ہیں، آنے جانے والے مسافروں کو، راستے سے گزرنے والوں کو گلاس دودھ کا بھر کے دیتے ہیں پینے کے لیے، تو گزرنے والے لوگ جو ہے سبیل سے دودھ پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ کوئی میٹھے پانی کی سبیل لگاتے ہیں، کوئی دودھ کی سبیل لگاتے ہیں، کوئی کھچڑا یا دلیم کہہ لیں وہ تیار کر کے، وہ پکا کے، اس کے ساتھ نان یا روٹی یہ پکا کے نیاز حسین کے طور پہ وہ تقسیم کرتے ہیں، اس پہ ختم دلاتے ہیں، تقسیم کیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پہ جاتے، قبرستانوں میں جاتے، قبرستانوں میں جا کے کیا کرتے ہیں، وہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ قبرستانوں میں اگر تو اپنے پیاروں کی قبریں ان کی کچی ہیں تو اس کے اوپر دوبارہ مٹی ڈالتے ہیں، پھر اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، اوپر پھول ڈالتے ہیں، پھولوں کی پتیاں ڈالتے ہیں،
अगरबत्ती का छिड़काव करते हैं। कोई दौर था ऐसा कि लोग कब्र के ऊपर अगरबत्तियां जलाया करते थे, लेकिन जैसे ही उलमाए कराम ने मना किया कि ये कब्र के ऊपर अगरबत्तियां जलाना ठीक नहीं है, तो अब वो जलाना छोड़ देते हैं, ऊपर इत्र वगैरह छिड़क देते हैं, कोई ऐसा काम कर देते हैं। जिससे जितना हो सके उतना कुरान मजीद पढ़ते हैं, कलाम पाक पढ़ते हैं, कोई सूरह यासीन, कोई सूरह मुल्क, या जो कुछ भी सही, जितनी हस्बे तौफीक हो वो पढ़ते हैं, अपने प्यारों को इसाले सवाब करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 9वीं 10वीं का रोजा रखते हैं, कुछ लोग 10वीं और 11वीं का रोजा रखते हैं। यौम आशूरा को करना क्या चाहिए? दर हकीकत ये फातिह इस्लाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद का दिन है। मैं ये अर्ज करूं कि ये मुकर्रब हस्तियां हैं, अल्लाह ताला की करीब हस्तियां हैं। इनको हम साले सवाब ना भी करें ना, तो ये इनके सदके ही हमारी बख्शिश होगी, इनके सदके तो हमारी बख्शिश है, ये हमारे लिए जरिया नजात है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम ना भी करें तो जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही इतना मुकाम अता फरमा दिया है, कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही इतना मुकाम अता फरमा दिया है, हमारे साले सवाब ना भी करें तो उनको कोई फर्क है? वो तो पहले ही बड़ी अल्लाह के करीब हस्तियां हैं, अल्लाह की मुकर्रब हस्ती हैं। तो फिर करना क्या चाहिए? इस दिन जितना हो सके आप अल्लाह ताला का पाक कलाम पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत करें, जितना हो सके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पर जितना हो सके दुरूद और सलाम के तोहफे भेजें। ये किया करें। और फिर क्या हो, फिर जब आपने बड़ा एहतमाम कर लिया, खुद भी बैठे, अपने साथ दोस्तों अहबाब को भी शरीक करें कि हम सारे मिल के इनकी याद में कुरान मजीद पढ़ते हैं, सूरह यासीन की तिलावत करते हैं, कुरान पाक जहां से हिस्सा हो सके तिलावत करें, सारे मिलके करें, इज्तिमाई तौर पे करें। मिल बैठ के जब आप करें और फिर उसके बाद दुआ मांगे, उस दुआ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अज़वाज मुतहरात, आपके अहले बैत तहार, खुसूस बिलखुसूस सैयदना इमाम हुसैन शुहदाए करबला, और आप 72 शुहदा के साथ जितने भी थे उनकी बारगाह में हदियतन पेश करें, तोहफतन मोहब्बतन पेश करें। फिर उसके बाद नियाज़ हुसैन तकसीम की जाए। ये तरीकाकार होता है। इस तरीके से इस यौम आशूरा को मनाया जाए। जो रोजे से हैं उनको आप इफ्तारी का सामान दे दें, घर में जाएं, आप इफ्तारी करें। ठीक है, जो लोग सबील लगाते हैं अच्छी बात है, जो वैसे बांटते हैं उसमें भी कोई कबाहत नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, बांटना चाहिए, बांटने वाला महीना। बहरहाल ये कहना कि इस दिन झाड़ू नहीं देना चाहिए, गुस्ल नहीं करना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए,
कपड़े अच्छे नहीं पहनने चाहिए, ये काम गलत है। झाड़ू लगा सकते हैं, कपड़े अच्छे पहन सकते हैं, नहा धो सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं बनती। शादी करना कैसा है, ये बड़ा लोगों के दिलों में सवाल होता है कि शादी करना कैसा है, आप ये बताएं। तो मुझे बताओ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां पे मना फरमाया कि शादी नहीं हो सकती? ठीक है, आप 10वीं मुहर्रम को ना करें, कोई मसला नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। शादी 10वीं मुहर्रम को आप नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी तो आप यकम मुहर्रम से लेकर कोई 7, 8, 9 मुहर्रम तक या 11 मुहर्रम से लेकर बाकी 30 मुहर्रम तक कर सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं। अफसोस होता है आज हमने गम हुसैन तो मनाना शुरू कर दिया है, लेकिन ये कभी भी सोचा नहीं कि कौन सा गम है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदीना से करबला तक ले गया। हमने कभी ये नहीं सोचा ही नहीं, काश कि हमें वो गम नसीब हो जाए जो इमाम हुसैन को था, जिस गम की खातिर, वो गम जो मदीना से करबला ले गई, काश कि हमें वो नसीब हो जाए। और अगर हमें वो नसीब हो गया तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। और फिर हम बिस्तरी के हवाले से बड़े लोग कहते हैं कि यार इस महीने में हम बिस्तरी नहीं हो सकते। यार आपने हम बिस्तरी अगर नहीं करनी तो ठीक है, आप 9वीं 10वीं को ना करें, बाकी आप पूरे मुहर्रम शरीफ में आप हम बिस्तरी कर सकते हैं। क्या हो गया आपको? कहां से आप ये रिवायात ले लेते हैं? हम बिस्तरी जायज नहीं, मियाँ बीवी आपस में मिल नहीं सकते, इस्लाम ने तो ऐसे पाबंदियां नहीं लगाई। बाकी आप सारे इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं और ये काम नहीं करना चाहिए जी। अगर आप हम बिस्तरी करेंगे तो हिजड़ा पैदा होगा, खुसरा पैदा होगा। यार कोई बात करने वाली किया करें। आपको किसने कहा है, कहां पे आपके पास गारंटी के जो पैदा होने वाला वो खुसरा ही होगा? अल्लाह ताला की बारगाह से दुआ है, परवरदिगार आलम हमें अपनी फिक्रों को, अपनी सोचों को बदलने की तौफीक अता फरमाए और इस दिन को जैसे मनाने का हक है वैसे मनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया होता है और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।